अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने अहदेदारों को तेलंगाना के लिए हरितहारम प्रोग्राम के तहत तयशुदा अहदाफ को हासिल करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से काम करने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर कमेश्वर और DFO विकास मीना के साथ तमाम महकमों के जिली अहदेदारों के साथ मरबूत जिली दफातर के अहाते में हरितहारम प्रोग्राम का जायजा लिया। दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान की रोकथाम खत्म की जाए, दलित बरादरियों का मुतालबा। हालांकि दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब कर लिया गया है और खातों में रकम जमा कराई गई है और कुछ अहल हैं दलित संघियों की क़ियादत में निजामाबाद जिले कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया ताकि इसकी मअतली के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। दलित बंधु स्कीम और एक अर्जी कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो को सौंपी गई। बाद में उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टी की कामयाबी के हिस्से के तौर पर दलितों को सनतों में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए और मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम को जारी रखा जाए और तमाम अहले उम्मीदवारों को जो पहले ही मुंतखब हो चुके हैं फंड्स मुख्तस किए जाएं। पुलिस मियापुर ने रात गए एक हाउस बगलर मुजरिम को गिरफ्तार करके 26 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी और 2 टू-व्हीलर गाड़ियां उसके पास से बरामद कर ली। खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस मियापुर ने RDC कॉलोनी में रात के वक्त एक मुजरिम को गिरफ्तार किया जो मियापुर चंदानगर गच्चीबौली KBHB पुलिस स्टेशनों के हुदूद में 20 चोरी की वारदातों में मुलविस था। క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మన మియాపూర్ పోలీస్ బొబ్బడి అభిలాష్ సన్ ఆఫ్ బొబ్బడి శంకర్రావు 29 years ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ద లిమిట్స్ ఆఫ్ చందానగర్ గచ్చిబౌలి. ఇతను 20 కేసెస్ 20 కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. మియాపూర్, చాందనగర్, గచ్చిబౌలి, KPHB ఈ లిమిట్స్లో ఈ నేరాన్ని చేశాడు. ఇతను విక్రమ్పురం కడకెల్లా మండల్, శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ AP ఇక్కడికి చెందినవాడు. ఇతను ఇంజనీరింగ్ పర్సూ చేసి దాన్ని డిస్కంటిన్యూ చేసుకొని తర్వాత ఈజీ మనీ కోసం ఈ ఏరియాలో తిరగడం, అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు లాక్ అయి ఉన్నాయి అక్కడున్న డ్వెల్లర్స్ బయటికి వెళ్తే అక్కడ సెంట్రల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ లేనవి చూస్ చేసుకొని దాన్ని ఒక డెలివరీ బాయ్ లాగా అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రేకి చేసి తర్వాత అతని దగ్గర మెకానికల్ ఇంజనీర్ చదివాడు కాబట్టి అక్కడికి ఒక పెద్ద కట్టర్, స్టీల్ కట్టర్ని తీసుకెళ్ళి నైట్ టైం ఇంటికి వెళ్ళి ఎవరు లేక ఉన్న టైంలో నియర్లీ 16 lakhs వర్త్ ప్రాపర్టీ మనం రికవరీ చేశాము. పాత 1.5 years నుంచి కూడా ఇతన్ని వెతకడం జరిగింది. ఇతను ప్రొఫెషనల్ థెఫ్ట్ చేసేవాడు కాబట్టి 1.5 year నుంచి కూడా తప్పించుకొని వేరే వేరే నేమ్తో అక్కడిక్కడ దాచుకోవడం జరిగింది. అయినా కానీ మన పోలీస్ అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ N. నరసింహారెడ్డి, అడిషనల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మాదాపూర్. कोत्तागुड़म MLA CPI रियासती सेक्रेटरी कोनाननी सामा शिवराव ने कहा है कि अजीम समाजी फिलोसफर हमारे रहनुमा है और ये काबिल सताइश है कि DHPS कैलेंडर इन अजीम इंसानों की रूह के मुताबिक शाये हुआ है। सांबा शिवराव ने नए साल के कैलेंडर की नकाब कुशाई जुमेरात को CPI रियासती दफ्तर में रियासती कायदीन नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबरान चाड़ा वेंकट रेड्डी के साथ किया। बादजा उन्होंने कहा है कि DHPS की जानिब से मुनज़्ज़म समाजी तहरीकें लोगों में समाजी शऊर और मुज़ाहिमती क़ुव्वत को बढ़ा रही हैं। 6वीं कौमी टेक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में मुख्तलिफ अजला के मुख्तलिफ तलबा चमक रहे, जिसका एहतमाम ओडिशा
ٹیکوانڈو یونین نے انڈین ٹیکوانڈو یونین کے ذریعے پروموشن کیا تھا۔ بڈگام سری نگر کے نوجوان ایتھلیٹس نے لیگ میں چمکتے ہوئے مختلف میڈلز کیٹیگریز جیتے ہیں اور بلا ترتیب 14 گولڈ اور سلور میڈل جیتے۔ اسٹوڈنٹس نے آرمی اور ان کے کوچ کی شاندار حمایت کی تعریف کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کھیل کے لیے غیر مشروط تعاون پر والدین کے بے حد مشکور ہیں۔ بیمنا سے بلانگ کرتا ہوں۔ نیشنل ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں برونز میڈل حاصل کیا ہے۔ میری 5 فائٹس ہوئی تھی برونز میڈل کے لیے۔ فرسٹ فائٹ میری منی پور، سیکنڈ فائٹ ناگالینڈ، تھرڈ فائٹ چھتیس گڑھ اور فورتھ فائٹ دلی، اور پھر اس کے بعد لاسٹ فائٹ ویسٹ بنگال کے ساتھ ہوئی تھی۔ اچھا لگا مجھے وہاں پہ۔ میری یہی میسیج رہے گی یوتھ کے لیے کہ آپ لوگ ڈرگس کی اور مت جائیے، اسپورٹس میں آئیے، کسی بھی اسپورٹس میں آئیے، مارشل آرٹس میں آئیے یا پھر کسی اور اسپورٹس میں آئیے، انڈور آؤٹ ڈور اسپورٹس، مگر اسپورٹس میں آئیے۔ آپ لوگ ڈرگس سے دور رہیے، اس میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بات ہے اور میں سری نگر نور باغ سے تعلق رکھتی ہوں، تو میں نے 6 نیشنل ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور میں اپنی مینجمنٹ کی شکر گزار ہوں، اپنے اسکول کی، کہ انہوں نے ہمیں ایسے کوچ پرووائڈ کیا۔ اپنے GOC سر کا میں کہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے بولنا ہے نہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسے کوچ پرووائڈ کی، اور میں اپنے گھر والوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں سزٹ لوئی پورہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم اڑیسہ کھیلنے گئے تھے، 6 نیشنل چیمپئن شپ تھی وہاں، میں نے وہاں سے سلور اور برونز میڈل نکالا۔ پہلی بار اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہمیں بہت اچھا لگا، وہ بھی ہمیں سجاد سر اور اپنے اسکول کے ہمارے اسکول کا نام ہے AGS ہانزک، وہاں سے بھی سپورٹ ملا اور گھر والوں سے بھی، پیرنٹ کا سپورٹ فل رہا۔ میری میسیج یہی رہے گی کہ پیرنٹ سے یہی میسیج رہے گی کہ وہ اپنے بچوں کو اسپورٹس میں لائے۔ سری نگر سے ہوں میرا 6 نیشنل ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ تھا اڑیسہ میں، جس میں نے سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ میرے فیملی کا بہت سپورٹ تھا اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے پیرنٹس اتنے اچھے ہیں، اتنے سپورٹیو پیرنٹس ہیں میرے۔ کوچ کا تو پہلا ہی سپورٹ ہے، انہوں نے ہمیں اتنی فیسلٹیز دی اور ہمیں اسٹرینگتھ دی، ہمیں سکھایا کیسے کیا کرنا ہے۔ میری میسیج یہی رہے گی کہ اسپورٹس میں جائیے، کھیلیے، گھر پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسپورٹس سے آپ فزیکل فٹ رہیں گے، اور بس اتنا ہی۔ میرا نام فروا ہے۔ گولڈ بہت زیادہ اچھا لگا، پیرنٹس کا بھی سپورٹ تھا، اور می گڈ ول اسکول میں پڑھتی ہوں، ہمیں مینجمنٹ کی طرف سے میں شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے GOC صاحب ہے اس کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے سجاد سر ہے اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ نام امہانی ہے اور میں سری نگر سے تعلق رکھتی ہوں، اور بہت اچھا رہا فیملی کا سپورٹ، اور میں شکر گزار ہوں سجاد سر کی، اور جو ہمارے اسکول کی طرف سے مینجمنٹ کا انتظام تھی، فیسلٹی دی ان کا بھی شکر گزار ہوں میں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایسی فیسلٹی دی، ٹائیکوانڈو لایا ہمارے اسکول میں اور ہم نے کھیلا۔ منظورہ معیاری کلان چاوڑا سے بلانگ کرتی ہوں۔ میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اڑیسہ میں۔ سینئرس میں بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے میڈل نکالنا، اور میں نے کر کے دکھایا، میں نے گولڈ نکالا وہاں پہ، کیونکہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا مارشل آرٹس میں ہی، اور اس سے انسان مینٹلی بھی فٹ رہتا ہے اور فزیکلی بھی فٹ رہتا ہے، اس لیے میں نے مارشل آرٹس کو چوز کیا۔ اگر ہم بات کریں لڑکیوں کی ہریس ہونے کی، تو اگر ان کے لیے ضروری ہے سیلف ڈیفینس، وہ سیلف ڈیفینس سیکھ سکتے ہیں، جس سے وہ اپنے خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی جائے ان کو کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ پھر آگے میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں اسپورٹس میں، اولمپکس لیول تک میں جانا چاہتی ہوں۔ پہلے انشاءاللہ ہمیں جانا ہے انٹرنیشنل لیول، پہلی بار جا رہے ہیں سجاد سر کی وجہ سے، اس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اس نے ہمیں موقع دیا جاننے کے لیے، اور میں اپنے پیرنٹس کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور
पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स किया और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं उनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ, इंटरनेशनल लेवल के लिए जाना चाहती हूँ, उन्हीं की वजह से मैं जा रही हूँ। बच्चे गए थे, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने गोल्ड हासिल किया, सिल्वर हासिल किया और कम किया? सबसे पहले मेरा नाम सईद सुजात शाह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन का, और साथ साथ अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का मैं सेक्रेटरी हूँ। जो 6th नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो हुई थी उड़ीसा में, वहाँ की मैनेजमेंट ने, वहाँ के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी साहब ने, जो फाउंडर हैं उस गेम का, जिन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी हमारे वहाँ के कश्मीर के बच्चों को, डिफरेंट स्टेट से जो बच्चे आए थे उनको अच्छी फैसिलिटी मिली थी, और साथ साथ मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ स्पेशली सराकत जमा। देखिए, मैं सीओ साहब का, जोशी साहब का, जिन्होंने हमें परमिशन दी है आर्मी गुडविल हांजिक, जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस देते हैं इन बच्चों को, वहाँ पे अलाउ किया है। तो मैं चाहता हूँ वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहनी चाहिए इन बच्चों को, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ। दिल्ली में हैपकेडो चैंपियनशिप में 2 कश्मीरी नौजवानों ने गोल्ड मेडल जीता है। 2 बच्चे जिन्होंने जैकेडो चैंपियनशिप पी में गोल्ड मेडल जीते हैं, मसाविर रियाज असगर 7 साला, ख्वासा मागाम और आरिफ अहमद HMT श्रीनगर से हैं। 2 यंगस्टर ने कहा है कि वो कौमी सतह पर गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुश हैं। दोनों ने दावा किया है कि वो मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। आरिफ अहमद ने दरख्वास्त की कि इस दौर में हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को खेलों के मैदान में सपोर्ट करें, क्योंकि अगर बच्चा बासलाहियत होगा तो वो खेलों के मैदान में मुस्तकबिल बना सकता है। तो रिसेंटली मैंने नेशनल खेला है दिल्ली में, तो जो कि मेरा गोल्ड हासिल हुआ है वहाँ पर। तो कंपटीशन टफ भी थी और मैंने उसके लिए सालों भर मेहनत भी की थी। तो वहाँ पर तो नेपाल तो मुझे टफ थी, पता थी, मुझे डर भी लगता था, नेपाल के साथ फ़ाइट है। तो मैंने पहली फ़ाइट नेपाल के साथ आई, तो मैंने फ़ाइट कंटिन्यू की। तो मुझे लगा दूसरे राउंड में मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, तो मैंने फ़ाइट कंटिन्यू रखी और अपना पेशेंस चालू रखा। बचपन से इससे मैं 1st क्लास से सीख रहा हूँ, अभी मैं 8th क्लास में हूँ। तो मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ कि इसमें एक ऐसा जज्बा है जो कि सेल्फ डिफेंस, और मुझे इसमें नाम बनाना है, और इस नेशनल के बाद मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाना है, वो भी मार्च में जाना है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड की सब बेस्ट गेम है मेरे लिए, बेस्ट गेम है ऑफ वर्ल्ड। करते हैं कश्मीर में ज़्यादातर प्लेयर्स हैं, इनके अंदर कूद के टैलेंट भरा है, लेकिन इनके फैमिली कंडीशन ऐसे नहीं है। अगर ये किसी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे स्पॉन्सर चाहिए, ये स्पॉन्सर नहीं देते। आरिफ फारूक, मैं आबश HMT श्रीनगर में रहता हूँ। तो मैं प्रैक्टिस करता चल के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड हासिल किया। मैं बहुत ही अच्छा मेरे को 4 फाइट आई थी, और मेरे को एक नेपाल के साथ आई थी, उसके साथ मुझे बहुत ही टफ लग रहा था, क्योंकि मैंने जीता तो मैंने हार नहीं मानी। दूसरी हरियाणा के साथ आई, और पंजाब और ये दिल्ली के साथ। अच्छा इवेंट लगा, लेकिन अपनी भी मेहनत होती है, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको अच्छा लगेगा, खेलने के लिए भी जो जीतेगा उसको ही अच्छा लगेगा। मुझे ये गेम बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था इसके लिए खेलना, क्योंकि ये गेम एथलीट भी है। तो इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था, क्योंकि घर वालों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, बाप का और सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं इस गेम में खेलना चाहता था, क्योंकि मुझे बचपन में शौक़ था खेलने के लिए। मैं सबको ये चिनार स्पोर्ट्स एकेडमी का कोच हूँ, जो 2008 से चल रहा है अभी तक। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर इंटरनेशनल खेला, इंटरनेशनल मेडल हासिल किया, और आज ये 2 बच्चे आरिफ फारूक और मुसाविर रियाज, इन 2 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, और ये 2 बच्चे सिलेक्ट हो गया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। इनको बैंकॉक थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इनको पहले ट्रायल देना पड़ेगा दिल्ली टालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, वो मार्च में है, और इंशाल्लाह इनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाना है
अगस्त में। तो मैं इन बच्चों का बहुत बहुत, आज की बात अगर हम करेंगे तो ये दोनों बच्चे सिलेक्ट हो गए। उन लोगों ने दो नहीं करता है, लेकिन मैं इंडियन आर्मी HM पूरा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, हर टाइम वो हेल्प करते हैं हमको। और बात रही मिस्टर जावेद अहमद कुरैशी साहब का, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर टाइम वो मुझे सपोर्ट करता, आज भी उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। मैं जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीम को सपोर्ट किया। और इंडियन आर्मी का भी गगरपुरा और HMD का बहुत शुक्रगुजार, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पार्लियामेंट का इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक रहेगा। 31 जनवरी सदर का खिताब और इक्तिसादी सर्वे होगा और 1 फरवरी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट अबूर बजट पेश करेंगे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर चांद पाशा ने सियासी जमातों और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और अराज़ी के एक मसले को लेकर भी मीडिया के सामने तफसीलात बताई है। देखिए चांद पाशा ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी साहब, मैं एक सब्जेक्ट आपको इतना मालूमात कर रहा हूँ मैं सबूत के साथ। ये आसिफ नगर मंडल PS नगर हाकी ग्राउंड का सब्जेक्ट है। वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे झुपड़ी पट्टियों में रह रहे गरीब लोग हैं, लेबर का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले। तो जो घरों के पट्टे मंजूर करना बोल के 2009 में लैंड कमिश्नर विद्यासागर साहब को ये लोग दरखास्त लिखे थे। तो लिखने की वजह से लैंड कमिश्नर विद्यासागर साहब तेलंगाना के स्टेट, तो ये लोगों को मकानात दे दो बोल के आसिफ नगर मंडल तहसीलदार को ऑर्डर दिए है, नामपल्ली RDO को ऑर्डर दिए है, हैदराबाद कलेक्टर को ऑर्डर दिए है। ऑर्डर देने के वजह से तो वो गरीब लोगों के पास रात में आधी रात को जाके झोपड़ी पट्टी वालों गरीब लोगों को झोपड़ियाँ जला दिए साहब। जहाँ रात में 2 बजे रात को झोपड़ियाँ जला दिए। मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। मैं ये आसिफ नगर मंडल में लगता है और PS नगर हाकी ग्राउंड बैक साइड में ये देखिए ये झोपड़ियाँ जलाए सोए। ये सबूत के साथ मैं पेश करता हूँ आपको। मैं बिना सबूत के कोई किसी के खिलाफ मैं स्टेटमेंट नहीं देता। ये देखिए ये पूरे झोपड़ियाँ जलाए सोए, ये पूरा सबूत के साथ दे रहा हूँ मैं कि हाँ बिना सबूत के किसी के खिलाफ मैं स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। ये रही मैं एक समाजी कारकुन हूँ मोहम्मद चांद पाशा, ये सबूत है। हाँ आपको एक बात बोला हूँ मैं, सही है, लैंड कमिश्नर साहब विद्यासागर साहब ने ये जो हैदराबाद कलेक्टर को मकानात दे दो बोल के ये जीवो पास करे है। ये लैंड कमिश्नर कलेक्टर है, ये अच्छा देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये लैंड कमिश्नर साहब। तो इस वजह से लैंड कमिश्नर साहब ऑर्डर देने के बावजूद भी नहीं देने की वजह से सिटी सिविल कोर्ट चीफ जज मैडम को रिकमेंड्स करे लोग करे। तो सिटी सिविल कोर्ट जज मैडम ने नाम हैदराबाद कलेक्टर को, नामपल्ली RDO को, आसिफ नगर मंडल तहसीलदार को नोटिस भेजे है। जहाँ नोटिस भेज के 2 साल हो रहा है, नोटिस का जवाब नहीं दिए हैदराबाद कलेक्टर, नामपल्ली RDO, आसिफ नगर मंडल तहसीलदार ने। तहसीलदार इसलिए दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तहसीलदार का नाम मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं आसिफ नगर मंडल तहसीलदार चंद्रकला, जी हाँ चंद्रकला, रिश्वत बगैर काम नहीं करती है चंद्रकला थोड़े लोगों की लिस्ट तैयार करी है, लैंड कमिश्नर विद्यासागर बोलने से लिस्ट तैयार करे हैं। तो एक आदमी का ने 1500 रुपये लेके हमारे आसिफ नगर मंडल तहसीलदार ने लिस्ट तैयार करे। मेरे थोड़े लोगों के लिस्ट ना है मेरे का नामा, ये देखिए ये लिस्ट तैयार करे आसिफ नगर मंडल तहसीलदार ने, ये लिस्ट तैयार करे सो है। मेरे कहने थोड़े लोगों के नामा है, मैं आपको इत्तला करता हूँ। मैं ये देखिए ये सबूत है, ये लिस्ट तैयार करे सो ST SC ये जो लिस्ट तैयार हुई है, ये देखिए मेरे कहने थोड़े लोगों के नामा भी हैं, ये लिस्ट तैयार करे सो। और थोड़े लोगों के नामा मेरे को याद है, मैं वो ज़ाहिर कर सकता हूँ। मैं तस्लीम बेगम, शबाना बेगम, मोहम्मद यूसुफ जानी, मोहम्मद चांद पाशा और बिल्किस बेगम, और थोड़े लोगों के नामा मेरे को याद है, मैं वो इत्तला कर सकता हूँ। मुमताज़ बेगम, खैरून बेगम, यूसुफ जानी, मोहम्मद चांद पाशा, शबाना बेगम, तस्लीम बेगम और बिल्किस बेगम, मंजूला, बुज्जम्मा, थोड़े लोग मेरे जो नामा याद हैं,
मेरे कने ये 12 आदमी का लिस्ट मेरे कने है। मैं ये 12 आदमी का लिस्ट बहुत मुश्किल से ये सबूत मैं पेश कर रहा हूँ मैं। और थोड़े लोगों के ये लोगों क्या करें एप्लीकेशन थोड़े सबूत ये लोगों गायब कर दिए। कौन गायब करे? आसिफ नगर मंडल तहसीलदार चंद्रकला नामपल्ली ऑडियो भी फाइल गायब कर दिए। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में भी फाइलें गायब कर दी है। तो मैं पूछता हूँ ये जो 2009 में जो एप्लीकेशन जो डाले हैं ना, उनके एप्लीकेशन फार्मा कहाँ है? आप इंक्वायरी करिए। हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब आपको पूरा प्रूफ के साथ सबूत के साथ आपको मैं भेज रहा हूँ। मैं ये हकीकत है, ये झोपड़ियाँ जला दी है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर ये गलत निकला है, इत्तेफाक से मैं कोई ऑफिसर पे एग्जाम डाल रहा हूँ, अगर गलत लिखा है फ़ौरन मेरे पे एक्शन लीजिए, मेरे को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर ये सच है, हकीकत है, हैदराबाद कलेक्टर को सस्पेंड करना, वो लोगों पे केस नमूद करना, बल्कि मैं सोशल वेलफेयर स्टेज की तरफ से मैं डिमांड कर रहा हूँ। मैं देखिए, हैदराबाद कलेक्टर पे एक्शन लीजिए, नामपल्ली ऑडियो पे एक्शन लीजिए। आसिफ नगर मंडल तहसीलदार चंद्रकला जो बदमाश चंद्रकला है, वो औरत भी नहीं है, मर्द भी नहीं है। छक्कों को तहसीलदार कैसा बनाए? अच्छे लोगों, पढ़े लिखे लोगों को तहसीलदार नहीं बनाए, एक ढब्बे को तहसीलदार कैसा बने? मैं ये सवाल पूछता हूँ। मैं ये देखिए, गरीब लोगों को अगर घरान देना है हकीकत में भी, तो लिस्ट तैयार करते। जी मैं ये लिस्ट तैयार करे हुए मैं ये सबूत देता हूँ। मैं तो फिर आधी रात को आके गरीब लोगों को झोपड़ियाँ जला दे के वो प्लेस को ओपन कर दिए। अभी सुबह हाकी ग्राउंड बैक साइड में जो प्लेस है ना, वो ओपन प्लेस करे हैं, जहाँ थोड़े झोपड़ियाँ अभी भी मौजूद है। वहाँ पे वो लोग 90 साल से 80 साल से है वहाँ पे, वहाँ पैदा हुए सभी लोग भी है। जी हाँ, वो लोग घरों में काम करने वाले हैं, जो लेबर का काम करने वाले हैं। तो फिर ये लोगों को इंसाफ करने के बदल नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछ, ऐसे कलेक्टर कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, कई ऑडियो आते हैं जाते हैं। हाँ, कई तहसीलदार चेंज हो गए, लेकिन गरीबों के मसले हल करने वाला कोई ऑफिसर नहीं है। गरीब पे जुल्म करने वाला चाहिए। क्यों गरीब पे जुल्म करते हैं? मैं गवर्नमेंट अहदेदारों को पूछता हूँ, ये जो जनता जो है ना, आप लोगों को या चाहे कलेक्टर रहने दो, चाहे हाई कोर्ट का चीफ जज रहने दो, चाहे आरडीओ रहने दो या तहसीलदार रहने दो, जनता तनख्वाह देती है सभी लोगों को, गवर्नमेंट अहदेदारों को। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सियासती एमएलए हों दो, एमपी हों दो, चाहे चीफ मिनिस्टर हों दो, प्रधानमंत्री। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ जेएचएमसी ई लाल सिंह के साथ जीई निवास के हमरा नामपल्ली चिल्ड्रन मार्केट रोड का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत की कि वो जल्द से जल्द वीडीसीसी रोड के कामों को शुरू करें। टीडीपी हलके के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में से सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों के लिए अन्ना कैंटीन कायम करेंगे और गरीबों की भूख मिटाएंगे। टीडीपी यूथ लीडरान और ज्वाइंट श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के सदर गोंडू शंकर ने जुमेरात को अन्ना कैंटीन जारी रखा। इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में भी कैंटीन का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया गया। श्रीकाकुलम देही मंडल कृष्णापेट गांव में एक नया बनाया गया रैतु भरोसा केंद्र और विलेज हेल्थ क्लिनिक की इमारतों और जगन कॉलोनी में तकरीबन 38 मकानात और गांव में बस शेल्टर और 21 लाख की लागत से तामीर होने वाले संगे बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। यूथ लीडर धर्मना राम मनोहर नायडू ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसके हिस्से के तौर पर कृष्णापेट गांव में 21 लाख रुपए से रैतु भरोसा केंद्र और 17 लाख रुपए से गांव का हेल्थ क्लिनिक बनाया गया। महाराष्ट्र ने मरकजी हुकूमत का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड जीता है। महाराष्ट्र को सदर द्रौपदी मुर्मू ने बेहतरीन कारकर्दगी वाली रियासत का पहला अवार्ड पेश किया है और यह शहरत की खातिर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत के अवाम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तमाम म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों को मुबारकबाद दी है।
महाराष्ट्र ने सफाई से मोहब्बत करने वाले शहरियों के ताउन और सफाई सुथराई के कारकुनों की मेहनत की वजह से आला मुकाम हासिल किया है, कहा। वज़ीर आला ने सफाई के कारकुनों और तमाम अफसरान और मुलाजमीन को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस मकसद में बहुत ज्यादा ताउन किया है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साफ सुथरे शहरों में नवी मुंबई ने 7 स्टार रेटिंग के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। किताबों और तालीम के साथ देहात के लोगों का मजबूत ताल्लुक कायम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है। सिंगरूर में आज 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 14 नई दही लाइब्रेरियों का इफ्तिताह किया गया। अब इन लाइब्रेरियों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर तबके को मुख्तलिफ किताबें दस्तयाब होंगी। इनका वाहिद मकसद पंजाबियों को आला दर्जे की तालीम फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुध की रात हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरे पर 13 ममालिक के नुमाइंदों की मेजबानी की। अमेरिका, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर उनका खैर मकदम किया और अपनी हुकूमत की तरजीहात की वजाहत की। सैयद वसीम के ज़रिए एहतमाम A to Z स्पोर्ट्स अंडर 19 कप बेरवा, जिसमें 8 मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये मुफ्त खेला गया। चीफ गेस्ट SHO बेरवा थे। फाइनल मैच के बाद मेहमान खुसूसी ने टीमों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। फातेह और रनर अप दोनों टीमों को ट्रॉफियां और मेडल्स पेश किए गए। उनके काबिल तहसीन काविशों को तस्लीम करते हुए जीतने वाली टीम को नकद इनाम किया गया। सैयद वसीम ने खिलाड़ियों, तमाशाइयों और इवेंट को देखने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और इवेंट को कामयाब बनाया। तमाम नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। ये इवेंट हमने अंडर 19 टूर्नामेंट खोला था। ये हिस्ट्री में पहली बार बीरवा में एक अंडर 19 टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया। A to Z स्पोर्ट्स अंडर 19 के नाम से, अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से। इसके ऑर्गेनाइजर थे मोहम्मद आसिफ और मैं सैयद वसीम। तो हमारा मेन इशू था कि छोटे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ से वो क्रिकेट को सीखे और उनका जो टैलेंट है वो बाकी जो क्लब्स है वो उनके नज़रों में आए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले। और मेन हमारा मोटिव यही था कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। टूर्नामेंट में हमने मुख्तलिफ इलाके की 8 टीमों, अंडर 19 एज की जो प्लेयर हैं 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बिलाखिर आज फाइनल सोनपा और गंदीपुरा की जो 2 टीमें हैं इनके दरमियान खेला गया, जिसमें सोनपा ने ये मैच 8 रनों से जीता और पहला अंडर 19 चैंपियन सोनपा बन गई। ये पहला टूर्नामेंट ऐसा था जिसमें हमने पहले एक प्लेज उठाया प्लेयर से कि वो कभी भी ज़िंदगी में ड्रग्स के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। देखो कोशिश तो करनी रहती है, जितना हम कोशिश करेंगे उतना हम मेरे ख्याल से बहुत हम इस कोशिश में, यहाँ पे बीरवा की मैं बात कहना चाहूँगा, हम बहुत इस कोशिश में कामयाब हो और इंशाल्लाह आगे भी हम जो हमारी जंग है ड्रग्स के ख़िलाफ़ ये आगे भी जारी रहेगी। मैसेज तमाम यूथ से यही है कि आप स्पोर्ट्स में आइए, एजुकेशनल में भी आप अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। साथ ही साथ दीनी तालीम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप में दीनी एहसास नहीं पैदा होता है तब तक आप गलत कामों से दूर नहीं रहते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है, आप स्पोर्ट्स में आइए, क्रिकेट कोई भी गेम हो उसमें आइए, उससे आपका फिज़िक डेवलप होगा, अच्छी मेंटलिटी डेवलप होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ड्रग से दूर रखने में बहुत काम आएगी। मैसेज यही रहेगी, देखो मैंने AA किया है, B.Ed भी किया है और इंटर जो जितना अच्छा तालीम हासिल करेगा उसको ज़्यादा मौके हैं स्पोर्ट्स में। देखो मैंने इंटर पहले हायर सेकेंडरी क्रिकेट खेली, फिर उसके बाद कॉलेज लेवल की खेली। तो उसमें क्या है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लेवल है, तो वहाँ से भी आप इंटरनेशनल तक जा सकते हो। और उससे क्या होगा, देखो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। जो बड़ा ऑफिसर होता है, KS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसका इंप्रेशन ही अलग रहता है। तो मेरी गुजारिश सभी दोस्तों से यही है, आप स्पोर्ट्स को एज अ पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट लीजिए और स्टडीज़ को एज पार्ट ऑफ कैरियर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गैलेक्सी जूनियर कॉलेज शालीबंडा चारमीनार में 2024 नए साल के कैलेंडर के इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद गैलेक्सी डिग्री और वोकेशनल जूनियर कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर शेख हुसामुद्दीन ने किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मामिदी भीम रेड्डी और मैनेजिंग कमेटी के अरकान P वीरामणि ज्योति, डॉक्टर हरिप्रिया धर्मा तेजा, डिवीजन कन्वीनर शिल्पा रेड्डी, बीजेपी लीडर दीपिका, BC रुकन चेकुरी लीला, राकेश बंडला गोड़ा और मंडल कन्वीनर ने इसमें शिरकत की।
سابق وزیر ہریش راؤ کا تلنگانہ بھون میں منعقدہ محبوب آباد پارلیمانی سطح کے اجلاس میں کہنا تھا کہ KCR نے تلنگانہ کے تحفظ کے لیے سخت محنت کی، جو جد و جہد کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب تلنگانہ آیا تو کیا حالات تھے، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ہار گئے، تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف ایک سپیڈ بریکر ہے۔ BRS مستقبل میں دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ محبوب آباد میڈیکل کالج KCR نے دیا تھا، صرف محبوب آباد پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں 4 میڈیکل کالج دیے گئے۔ ملک میں اس طرح کا کہیں نہیں ہے، تعلیم، ادویات، زراعت، سڑکیں سب ترقی کر چکے ہیں۔ شہر حیدرآباد تلنگانہ دکن کے مشہور و معروف ہستی مفکر اسلام زین الفقہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ شیخ الجامعہ جو کچھ دن پہلے اپولو میں شریک تھے، الحمدللہ صحت کے بعد اپنے گھر واپس کے بعد آپ نے بیان دیا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے صحت کے لیے دعا کی، فون پر رابطے میں تھے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ طلبہ سینکڑوں میں ان کے شاگرد ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں میں صحت یاب ہو کر گھر آ گیا ہوں۔ ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعا کی اور مزاج پرسی کی اور ٹیلی فون اور دیگر ذرائع سے میرے صحت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے، شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔